اور اب خبریں تفصیل سے۔ شمالی شام کے صوبہ ادلب میں روسی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 بچوں سمیت عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کے سول ڈیفنس کے مطابق حزب اختلاف کے زیر انتظام صوبہ ادلب میں یہ واقعہ پیش آیا۔ صوبے میں الجدیدہ نامی گاؤں پر جمعے کو ہونے والے حملے میں 8 بچوں سمیت 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مہینوں بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے سے علاقے میں امن کی صورتحال کو متاثر ہونے کے امکانات ہیں۔ وائٹ ہیلمٹس کے ڈپٹی ڈائریکٹر منیر المصطفیٰ نے بتایا ہے کہ الجدیدہ کے مضافات میں علاقے میں گروپ کی ٹیموں کو 7 لاشیں ملی ہیں اور 12 زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے میں ایک چکن فارم اور ایک بے گھر خاندان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ في حوالي الساعة 6 من صباح يوم الجمعة 22 تموز تبلغنا عن غارات جوية استهدفت قرية جديدة في ريف جسر الشغور الشمالي. فرقنا توجهت إلى المكان وعملت على انتشال الشهداء وإسعاف المصابين إلى أقرب مشافي، ومن ثم تابعت عملية إنقاذ العالقين من تحت الأنقاض. طبعا العملية كانت صعبة بسبب تحليق الطيران الاستطلاع والطيران الحربي. الحصيلة النهائية كانت 7 شهداء بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، بالإضافة إلى 14 مصاب، بالإضافة ل4 غارات جوية استهدفت هذا المكان والذي يضم نازحين من قرية الزيادية. والله نايمين بالليل ما حسينا الصبح، وجه الصبح نايم ما كل امبارح حلم وانه البيت كله فوق منا. طلعت دورت على زوجتي لقيتها والاولاد ما لقيت منه شيء، كلهم فوق الهدم كلياتهم متوفوا ال4 والله. انا ظهري ما بعرف اشوف مرض، اشوف فيه اللوك كله فوق مني كمان. رجع ضربنا مرة ثانية، في شباب اجوا يساعدونا 2 كمان، 2 ماتوا وواحد صاب، والله اخواتي بالمشفى اشوف وضعهم والله. شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اسرائیل نے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے نتیجے میں شام کے 3 فوجی ہلاک جبکہ 7 شدید زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرحدی علاقوں کے جنگ کو مانیٹر کرنے والے ایک ادارے نے بتایا کہ حملہ جمعے کے روز صبح سویرے کیا گیا۔ دھماکے کی آواز دمشق اور اس کے سرحدی علاقے میں سنی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دمشق کے قریبی علاقے سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کی افواج نے میزائلوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ واضح رہے کہ 2011 سے شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے اب تک اسرائیلی فضائیہ نے شام پر سینکڑوں حملے کیے ہیں۔ اس کے اہداف میں شامی فوجی ٹھکانے اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ یوکرین کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین کے شہر کراماٹورسک میں روسی گولہ باری سے تباہ ہونے والے اسکول کے ملبے سے 3 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا کہ مشرقی دونیٹسک کے علاقے میں 2 اسکول کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری طرف روسی وزارت دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل ایگور کوناشینکوف نے کہا ہے کہ روسی حملے میں یوکرین کے 300 سے زائد فوجی مارے گئے ہیں جنہوں نے کراماٹورسک کی اسکول کے عمارت کو اپنے اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ کوناشینکوف نے مزید کہا کہ روسی افواج نے 5 جولائی سے 20 جولائی کے درمیان امریکہ کی طرف سے فراہم کیے گئے 4 ہمارس راکٹ لانچروں کو تباہ کیا۔ خیال رہے کہ روس کے ان تمام دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر یوکرین کے صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں روسی حملوں میں کم از کم 6 شہری ہلاک اور دیگر 18 زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی نژاد اور برطانوی رکن پارلیمنٹ رشی سنک کو شروع سے ہی وزیر اعظم کے عہدے کا مضبوط دعوے دار قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ اس عمل میں اب تک ہر راؤنڈ کی ووٹنگ میں سب سے اوپر رہے ہیں، لیکن ایک نئے سروے کے مطابق لیسٹرز سے ان کا جیت پانا مشکل لگ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ کے اگلے وزیراعظم کے دوڑ میں رشی سنک اور لیسٹرز کے بیچ پیر کے روز لائیو ڈیبیٹ ہوگی۔ یہ بحث ان کے مستقبل کا فیصلہ طے کرے گی۔ اس کے بعد پوسٹل بیلٹ پر ووٹنگ ہوگی۔ دونوں ہی
बोरिस जॉनसन की काबीना के कदावर लीडर रह चुके हैं और वजारत उज़्मा के दौड़ में अपनी दावेदारी जोरों शोर से पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी निजात और बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ऋषि को शुरू से ही वज़ीर आज़म के ओहदे के मजबूत दावेदार करार दिया जा रहा है। वो इस अमल में अब तक की वोटिंग के हर मरहले में सबसे ऊपर रहे हैं, लेकिन लिस्टर्स से इनका जीत पाना मुश्किल नजर आ रहा है। YouGov के एक हालिया सर्वे में इस बात के वाज़ह इशारे मिले हैं। इस सर्वे में वज़ीर आज़म के दौड़ में लिस्टर्स ने ऋषि पर 28 वोटों की बरतरी हासिल की है। कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामान ने जुमेरात को ऋषि और टस को पार्टी की क़यादत के आखिरी मराहिल तक पहुंचाने के लिए वोट दिया था। बरतानिया की मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिसिस्ट कंपनी YouGov सर्वे के मुताबिक ऋषि और टस में से किसी एक को अगला वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब करने के लिए 4 अगस्त से सितंबर के अवाइल तक वोटिंग होगी। इस हफ्ते के शुरुआती आदादोशुमार से पता चलता है कि 46 साल टर्स ऋषि को 19 पॉइंट से शिकस्त देंगे। टर्स ने सर्वे में मजबूत बरतरी बरकरार रखी है। सर्वे में शामिल 62% लोगों ने कहा कि वो टर्स को वोट देंगे, जबकि 38% ने ऋषि का इंतखाब किया। इसके अलावा भी कई ऐसे एमपीज थे जिन्होंने किसी को मुंतखब नहीं किया। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टर्स ने हर कैटेगरी में ऋषि को पीछे छोड़ दिया है। टर्स ने खवातीन और मर्दों दोनों का एतमाद जीत लिया है। इन्हें इन लोगों की हिमायत भी हासिल है जिन्होंने 2016 में ब्रेक्जिट के हक में वोट दिया था। ऋषि सिर्फ एक महाज पर टस को शिकस्त देने में कामयाब रहे और वो है 2016 में ब्रेक्जिट के खिलाफ रहे वोटर्स। ऋषि सुनक अब तक होने वाली वोटिंग के 5वें राउंड में सबसे आगे थे, लेकिन सर्वे के मुताबिक अब इन्हें पार्टी के अंदर कमतर समझा जा रहा है। खुद बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म के लिए लिस्टर्स को अपनी पसंद बताया है। अब तक की वोटिंग में ऋषि पार्टी के अराकीन के पसंदीदा उम्मीदवार रहे हैं। इन्हें 5वें राउंड में 137 वोट मिले, जबकि टर्स को 113 वोट मिले। लेकिन सट्टेबाज इस रेस में लिस्टर्स को फ्रंट रनर बना रहे हैं। आपको बताते चलें कि बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब 5 सितंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। श्रीलंका के नए सदर रानिल विक्रमासिंघे के ओहदे सदारत संभालने के महज एक दिन बाद हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस और फौज ने जुमे की सुबह दारुल हुकूमत कोलंबो में कायम हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी कायम कैंप पर धावा बोला और मुजाहरों का एहतमाम करने वाले कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर दिया। कोलंबो में सदारती सेक्रेटेरिएट का कंट्रोल अब मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में आ गया है। यह रिपोर्ट देखिए। सदारती श्रीलंका के नए सदर रानिल विक्रमासिंघे के ओहदा सदारत संभालने के महज एक दिन बाद पुलिस और फौज ने जुमे के सुबह दारुल हुकूमत कोलंबो में कायम हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी कैंप पर धावा बोला। पुलिस ने मुजाहरों का एहतमाम करने वाले कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद दारुल हुकूमत कोलंबो में सदारती सेक्रेटेरिएट का कंट्रोल अब मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में आ गया है। फौजियों ने सदारती महल से मुत्तसिल एहतजाजी मकाम पर नस्ब खैमों को भी तबाह कर दिया और तकरीबन 100 मुजाहिरीन के साथ इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है। मुजाहिरीन ने रानिल विक्रमासिंघे को नया सदर तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मुल्क में जारी माशी और सियासी बहरान का जिम्मेदार विक्रमासिंघे को ठहराया। मुजाहिरीन ने 9 जुलाई को सदर और वजीर आजम और पीएमओ की रिहाइशगाहें खाली कर दी थी। हालांकि वो अब भी गॉल फेस में सदारती सेक्रेटेरिएट के कुछ कमरों पर कब्जा किए हुए थे। कोलंबो में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी कैंप पर फौज के हमले से मुतालिक सोशल मीडिया पर कई वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद में फोर्सेस को मुजाहिरीन के खेमों के तरफ मार्च करते हुए देखा जा सकता है। फौज और पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज लाठियों और राइफलों से लैस थे, जो सदारती सेक्रेटेरिएट में खेमाजन मुजाहिरीन पर अचानक झपट पड़े। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि इन्हें इसके लिए पहले वार्निंग तक नहीं दी गई। फौजियों ने सदारती महल की इमारत के मरकजी दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए खड़ी की गई इन रुकावटों को भी हटा दिया है।
जिन्हें मुजाहिरीन इस माह के आगाज में इस इमारत पर जुज़वी तौर पर कब्जा करने के बाद खड़ा किया था। मुजाहिरों के मुंतज़मीन ने बताया कि इस हमले में कम से कम 50 मुजाहिरीन जख्मी हो गए, जिसमें बाज़ सहाफ़ी भी शामिल हैं, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारा पीटा। मुजाहिरीन की जानिब से किसी भी सूरत में इस इलाके को खाली करने का ऐलान पहले ही किया जा चुका था, ताहम इनके खाली करने से चंद घंटे कबल ही छापे की एक कार्रवाई हुई। नई काबीना की हलफ बर्दारी के बाद ही मुजाहिरीन ने इमारत को हुक्काम के हवाले करने के अपने मंसूबे का ऐलान भी किया। बहरहाल विक्रमासिंघे को नया सदर तो मुंतखब किया गया है, ताहम मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद में ये एक गैर मकबूल इंतखाब है। जुमेरात को सदर बनने के बाद ही नए सदर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें मुसल्लह अफवाज के अरकान को हुक्म दिया गया कि वो मुतादिद अजला में अमन आम्मा को बरकरार रखने की जिम्मेदारी संभाले। श्रीलंका में बहरान का आगाज गैर मुल्की कर्जों के बोझ से हुआ। श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर कर्जों की किस्तों की अदायगी से खत्म होने के दहाने पर पहुंच गए हैं। हालात ऐसे बन गए कि श्रीलंका में डीजल, पेट्रोल और अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत हो गई है। जरूरी अद्वियात खत्म हो गई। हुकूमत को पेट्रोल पंप्स पर फौज तैनात करने की जरूरत आन पड़ी। कोरोना वबा की वजह से सयाहत पर पड़ने वाले असरात और ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों ने बहरान को मजीद संगीन करने में अहम किरदार अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। साबिक क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुजाहिरीन पर फौज की कार्रवाई की मुखालफत की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर हमला होते देखना खौफनाक था, हालांकि वो पहले ही वहां से निकलने पर राजी हो चुके थे। याद रखें कि सबसे पहला काम लोगों की तकालीफ को कम करना है, इसे बढ़ाना नहीं। बराह करम आग में घी डालने का काम न करें। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में यूक्रेनी अनाज की बरामदात को लेकर बिलाखिर मॉस्को और कीव के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। यूक्रेनी अनाज की बरामदात से मुतअल्लिक एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान भी मौजूद रहे। बहरे असवद के रास्ते से अनाज की बरामदात की इजाजत देने के लिए रूस और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदे पर इत्तेफाक किया गया है। रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगु और यूक्रेन के वज़ीर ओलेक्जेंडर कोबराकोफ ने एक ही मेज पर बैठने और हाथ मिलाने से गुरेज करते हुए अलग अलग मुआहिदे पर दस्तखत किए। एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त तकरीबन 2.25 करोड़ टन अनाज रुका पड़ा है और अब इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि इसका कोई ऐसा हल तलाश किया जाए जिसकी मदद से वक्त पर आइंदा फसल के लिए गोदाम खाली किए जा सकें। Today there is a beacon on the Black Sea, a beacon of hope, a beacon of possibility, a beacon of relief in a world that needs it more than ever. I want to recognize and thank all those who helped make it happen. You have overcome obstacles and put aside differences to pave the way for an initiative that will serve the common interests of all. Promoting the welfare of humanity has been the driving force of these talks. The question has not been what is good for one side or the other. The focus has been on what matters most for the people of our world. चीन के शहर हेनान में लोगों ने चीनी बैंकों पर इल्जाम लगाया है कि इन्हें बैंकों से अपनी बचत निकालने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों अफराद ने बैंक के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहरों में शिद्दत देखते हुए चीन ने अपने ही शहरियों के खिलाफ सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। यकीन नहीं आता? यह रिपोर्ट देखिए। चीन में 4 जून 1989 को तियानानमेन स्क्वायर का वाकया आज भी लोगों की जबान पर है, जब चीनी हुकूमत ने एहतिजाज करने वाले अपने ही मासूम शहरियों का कत्लेआम किया था।
तब चीन का एक आम शहरी चीनी टैंकों के सामने एहतिजाज के लिए खड़ा हो गया था। उस तस्वीर को टैंक मैन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब एक बार फिर चीन ने अपने ही शहरियों के खिलाफ सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। ये टैंक चीन के बैंकों के बाहर लगाए गए हैं ताकि आम शहरी बैंकों तक ना पहुंच सके और बैंकों को उनकी रकम वापस ना करनी पड़े। ये किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया की नंबर 1 मैशियत बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे चीन के अपने ही बिजनेसमैन और लीडरान मैशियत का ये हाल कर देंगे कि बैंकों के पास अपने ही लोगों की कमाई वापस करने के लिए पैसे नहीं होंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन के बैंकों का इतना बुरा हाल हुआ है? दरअसल चीन के हेनान सूबे में लोगों ने चीनी बैंकों पर इल्जाम लगाया कि इन्हें अप्रैल 2022 से बैंकों से अपनी सेविंग निकालने से रोका जा रहा है, जिसके चलते हजारों लोगों ने बैंक के बाहर मुजाहरा किया। जिसके बाद बैंक ऑफ चाइना की सूबे हेनान की ब्रांच की जानिब से कहा गया कि इन शहरियों को इनकी रकम किस्तों में वापस कर दी जाएगी, जिसके लिए रकम की पहली किस्त 15 जुलाई को अदा करने का फैसला किया गया था। लेकिन 15 जुलाई आई और गुजर गई, लेकिन फिर भी लोगों को उनके पैसे नहीं मिल सके। जिसके बाद मुजाहरे किए गए। पुरतशद्दुद मुजाहरों को देखकर PLA ने बैंकों के बाहर टैंक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, चीनी पुलिस की जानिब से इन मुजाहरों को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर कहलाने वाली चीनी बैंकों की ये हालत क्यों है कि वो आवाम का पैसा वापस भी नहीं लौटा पा रहे हैं। अप्रैल 2022 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक खबर शाये हुई थी, जिसमें चीन में बैंक घपलों का इंकशाफ किया गया था। दावा किया गया है कि चीनी बैंकों से तकरीबन 6 अरब डॉलर यानी 47,000 करोड़ रुपए गायब हैं और अप्रैल के महीने से कई बैंकों ने रकम देना बंद कर दिया है। ताहम बैंकों का कहना है कि सिस्टम अपग्रेड होने की वजह से वो रकम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा एक और वजह चीन में रियल एस्टेट की खराब हालत को भी बताया जा रहा है। बैंकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलर्स को पैसा तकसीम कर रखा है, लेकिन वो रकम वापस नहीं कर पा रहे हैं। इन अफराद के शी जिनपिंग हुकूमत के करीब होने की वजह से बैंक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से चीन के आम लोग मुश्किलात का शिकार हैं। चीन में डूबते कारोबारियों और बढ़ती हुई बेरोजगारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। माहिरीन का कहना है कि साल 2022 चीन के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2022 की पहली तिमाही में चीन में 4.60 लाख कंपनियां बंद हो चुकी हैं और 31 लाख कारोबारी खानदान दिवालिया हो चुके हैं। जबकि 2022 में करोड़ों नौजवान चीन में तालीम हासिल करने के बाद नौकरियों की तलाश में निकलेंगे, जिसकी वजह से नौकरियों का बहरान भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के अमेरिकी इंतखाबात के नतायज को उलटने की कोशिश में लाकानूनियत और बदउनवानी का रास्ता अपनाया। गुज़िश्ता साल कैपिटल पर हमले की तहकीकात करने वाली हाउस कमेटी के चेयरमैन ने यह बात कही है। बेनी थॉम्पसन ने अदालत में कहा कि ट्रंप का इक़दाम जमहूरियत पर हमला और जमहूरी इदारे तबाह करने की कोशिश है, इसलिए इनका एहतसाब होना चाहिए। थॉम्पसन ने मजीद कहा कि सेलेक्ट कमेटी ने एक ऐसे सदर की कहानी सुनाई है जिसने इलेक्शन के नतायज को उलटने के लिए अपने इक़्तिदार के दौरान सब कुछ किया। उन्होंने झूठ बोला, धौंस से काम लिया और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। काबिल जिक्र है कि तहकीकाती कमेटी अमेरिका में इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और ट्रंप की तकरीर और वीडियो का जायजा ले रही है, जिसके दौरान कैपिटल हिल पर हमला हुआ था। कमेटी की तमाम कार्रवाई सितंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। लीबिया की हरीफ हुकूमतों में से एक ने जुमे के रोज अस्करियत पसंदों से फौरी तौर पर लड़ाई बंद करने का मुतालबा किया है। मुल्क के दारुल हुकूमत तराबलस में रात भर चलने वाली झड़पों में कई शहरी हलाक हुए हैं, जबकि सैकड़ों अफराद को इलाका छोड़कर फरार होना पड़ा। तराबलस में लीबिया की सदारती कौंसिल ने जुमे की सुबह एक बयान में कहा कि तनाज़े में शामिल तमाम फोर्सेस को फौरी तौर पर अपने अड्डों पर वापस जाना चाहिए। तकरीबन एक दहाई से खाना जंगी के शिकार लीबिया में यह ताजा तरीन तशद्दुद का मामला है।
हालिया महीनों में तराबलस में हरीफ जमातों के बीच तशद्दुद के कई वाकयात पेश आए हैं। साल की पहली तिमाही के माशी नताइज सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के लिए खसारे की खबर लेकर आए हैं। ट्विटर को अप्रैल ता जून तिमाही में $270 मिलियन का नुकसान हुआ है। और इसी के साथ नाजरीन आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान विसाल आजम को दीजिए इजाजत। आदाब।